Okay, welcome to lecture number 32. The topic of today's lecture is Z transform, right? In previous class, we discussed about properties of Laplace transform, and we said that the Laplace transform is used for continuous time signals, right? Uh, Now today we will be discussing Z transform. Okay, so by definition, Z transform x of z is equal to summation n from minus infinity to infinity x of n z power minus n. Right? If you remember, the equation for dtft was e to the power j omega summation n from minus infinity to infinity uh, x of n e to the power minus j omega n, right? Now this z is r e to the power j omega. If you find the magnitude of z, then we get r, right? And if you find magnitude of e to the power j omega, then what you get? The magnitude of this is 1, because if you remember, we have magnitude multiplied with the exponent, right? Plus j, and then we have a theta, right? So the magnitude in e to the power j omega is 1, and angle is theta. But now in when we talk about z, then we have r e to the power j omega. So magnitude is r, or we can say, if I plot it on like this, if we talk about only this e to the power j omega, then the magnitude is 1. For example, we have in r, its radius is 1, right? So, and we have this angle theta, right, for z. But if we talk for e to the power j omega, then we have this radius is equal to 1. If the radius of a circle is 1, then this circle is called unit circle, right? But with now Z transform, now this radius is not fixed. This radius is not fixed to 1. It can vary, right? So this is the freedom that x of z provides. Z transform provides us the freedom that now the region of convergence can be in of any direction. But earlier, e to the power j omega, we have fixed region of convergence, that is r is equal to 1, right? So if we wish to compute relationship between Z transform and, or maybe, for example, if we wish to compute the Z transform of x of e to the power j omega is equal to summation n from minus infinity to infinity x of n e to the power minus j omega n, right? And x of z is equal to summation n from minus infinity to infinity x of n z power. अच्छा बाबा हाँ ॾिसो जेकॾहिं फॉर एग्जाम्पल अगर हम z इज इक्वल टू r e टू द पावर j ओमेगा पुट करें, तो हमारे पास z ट्रांसफॉर्म ऑफ r e टू द पावर j ओमेगा, भैया फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि r इक्वल टू j ओमेगा पुट करें तो हमें क्या मिलता है? n फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x ऑफ n r e टू द पावर j ओमेगा होल पावर माइनस n, राइट? इसको अगर हम थोड़ा फर्दर सॉल्व करें, तो n इज इक्वल टू फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x ऑफ n r पावर माइनस n, क्योंकि ये r पावर माइनस n e टू द पावर j ओमेगा पर भी है और r पर भी है, तो e टू द पावर माइनस j ओमेगा है, राइट? तो इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को जरा आप कंपेयर करें, तो आप देखें कि हमारे पास x ऑफ e टू द पावर j ओमेगा जो होता है, वो क्या होता है भाई?
ये हमें फ्रीक्वेंसी रिस्पांस बताता है एक्स ऑफ एन का, राइट। तो अगर हम इसको इस तरह नहीं लिख सकते कि ये जो हमारे पास इक्वेशन है ये है डी टी एफ टी ऑफ एक्स ऑफ एन आर पावर माइनस एन, सही। तो हम ये कह सकते हैं कि जेड ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ जेड जो होता है किसी भी या इसको मैं इस तरह करूं कि इसको मैं इस तरह लिखूं कि फोर जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू डी टी एफ टी ऑफ एक्स ऑफ एन टाइम्स ये हमारे पास एडिशनल टर्म आर टू द पावर माइनस एन, ठीक है। अभी आर टू द पावर माइनस एन हमें क्या बताएगा कि हमारे पास जो सिग्नल है वो कन्वर्ज किस तरफ करेगा। फॉर एग्जांपल अगर इसको हम आगे देखते हैं एग्जांपल्स में कि इसका मतलब क्या है, राइट। तो रिलेशनशिप बिटवीन एक्स ऑफ ई टू द पावर जे ओमेगा एंड जी ट्रांसफॉर्म इज, मतलब डी टी एफ टी और जेड ट्रांसफॉर्म में रिलेशनशिप ये है कि हमारे पास एक एडिशनल टर्म समझे मल्टीप्लाई हो जाता है आर इक्वल टू माइनस वन विथ इनपुट सिग्नल, और ये हमें क्या करता है सिग्नल को बाउंडेड बनाने में मदद देता है। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल देखें, मैं अगर यहाँ पर एक्स ऑफ जेड लिखता हूँ, इसकी डेफिनेशन एक्स ऑफ जेड इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ एन जेड पावर माइनस एन, और मैं अब क्या करता हूं, मैं z का वैल्यू r e टू द पावर j ओमेगा पुट कर देता हूं, r e टू द पावर j ओमेगा, राइट। n फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x ऑफ n r e टू द पावर माइनस j ओमेगा होल पावर, सॉरी प्लस है माइनस n, ठीक है। और अगर अज्यूम करें कि मैं इसमें क्या करता हूँ r इक्वल टू वन पुट कर देता हूँ, तो हमें क्या मिल जाएगा e टू द पावर j ओमेगा, क्योंकि अब r हमारे पास यहाँ पर वन है, समेशन n from minus infinity to infinity x of n e to the power minus j omega n, क्योंकि r यहाँ पर वन है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास z वेरिएबल में अगर r इक्वल टू वन है, इफ r इक्वल टू वन इन z ट्रांसफॉर्म, देन x ऑफ z बराबर हो जाता है x ऑफ e टू द पावर j ओमेगा के, राइट। अच्छा, अब एक और चीज़ है जो मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहता हूँ। देखें हमारे पास जो लेप्लास ट्रांसफॉर्म था, जो लेप्लास ट्रांसफॉर्म था उसमें हमारे पास क्या था, एक रियल पार्ट था, रियल पार्ट ऑफ एस था, और एक इमेजिनरी पार्ट ऑफ एस था। और हम क्या कर रहे थे, हम जो भी पोल्स वगैरह बन रहे थे हम क्या कर रहे थे, एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पर हम क्या कर रहे थे, किसी भी कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को हम क्या कर रहे थे, मैप कर रहे थे। लेकिन अब हमारे पास डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के लिए हमारे पास क्या है, जेड ट्रांसफॉर्म है, और वो क्या कर रहा है, एक पोलर जिसमें एक रेडियस है, ठीक है, और एक एंगल है, उस पर हम क्या कर रहे हैं, किसी भी सिग्नल को, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को मैप कर रहे हैं, सही है। तो हम कंटिन्यूस टाइम सिग्नल, क्योंकि अब हमें पता था, अगर आप याद करें कि सीटीएफटी का जो हमारे पास स्पेक्ट्रम होता था वो अपीरियोडिक होता था, राइट, वो रिपीट नहीं होता था। लेकिन हमारे पास डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स का क्या होता था, हमारे पास स्पेक्ट्रम वो पीरियोडिक था, तो हम उसको किसी सर्किल पर मैप कर सकते हैं, ठीक है। तो जेड ट्रांसफॉर्म हमें इसकी मदद देता है, ठीक है। ये हमारे पास रियल पार्ट ऑफ जेड होगा, और इसे ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, ठीक है। ये प्लस वन माइनस वन, ये माइनस जे है, ये प्लस जे, ठीक। अच्छा, अब हम आते हैं वापस, फॉर एग्जाम्पल, अब एक एग्जाम्पल कर लेते हैं कि हम कंप्यूट किस तरह करते हैं जेड ट्रांसफॉर्म को। कंसीडर अ सिग्नल एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू अल्फा पावर एन यू ऑफ एन, ठीक है। कंप्यूट जेड ट्रांसफॉर्म सिग्नल। अब जेड ट्रांसफॉर्म सिग्नल बाय डेफिनेशन हमारे पास जेड ट्रांसफॉर्म क्या है कि एक्स ऑफ जेड बराबर होता है समेशन एन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ एन जेड पावर माइनस एन, राइट। अब देखें ये एक्स ऑफ एन का जो हमारे पास एक्स ऑफ एन हमें मिला हुआ है वो किसके बराबर है, ए पावर एन यू ऑफ एन के, सही है। तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ कि एन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ठीक है, ए पावर एन यू ऑफ एन जेड पावर माइनस एन, ठीक है। अच्छा, अब देखिए ये u ऑफ n यहाँ पर अवेलेबल है, और u ऑफ n कहाँ से लेकर कहाँ तक एग्जिस्ट करता है, अगर आपको याद हो तो u ऑफ n अगर मैं यहाँ पर ड्रा करूँ तो n फ्रॉम
जीरो, ये जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक इसका एम्पलीट्यूड क्या होता है, 1 होता है। लेकिन माइनस इन्फिनिटी टू -1 ये क्या होता है, जीरो होता है। तो ये जब जीरो मल्टीप्लाई होगा ये नेगेटिव इन्फिनिटी के साथ, तो हमारे पास नेगेटिव इन्फिनिटी से -1 तक सिग्नल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बाकी हमारा सिग्नल क्या बचेगा, इन्फिनिटी तक बचेगा। और 1 क्योंकि एम्पलीट्यूड 1 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज दैट थिंग, सही है। फॉर एग्जाम्पल x मल्टीप्लाई बाय 1 इज x, y मल्टीप्लाई बाय 1 इज y, तो जो भी एम्पलीट्यूड होगा वही बचेगा। तो हमारे पास क्या बच गया, a पावर n z पावर -n, ठीक है। अब देखें मैं इसको रीअरेंज कर कर लिखूं तो n फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी एल्फा z इनवर्स होल पावर n, इस तरह लिख सकता हूँ, ठीक है। इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ क्योंकि देखें अगर दोबारा मैं n को मल्टीप्लाई करूं तो ये n z पावर -1 के साथ मल्टीप्लाई होकर z पावर -n बन जाएगा और a पावर n बन जाएगा। तो मैंने क्या किया, इससे n को कॉमन पावर में रखा है। अच्छा, अब अगर आपको एक सीक्वेंस याद हो कि अगर हमारे पास कोई इस तरह की सीक्वेंस हो तो वो किसके बराबर होती है, 1/1 माइनस ए, एक्सक्यूज मी, व्हेन a इज लेस देन 1, ठीक है। जब हमारे पास कोई सिग्नल हो जो इनफाइनाइट टाइम तक उसका सम हो और उसकी पावर सीरीज सम हो, तो वो किसके बराबर होती है, 1/1 माइनस ए। तो देखिए यहाँ पर अगर हम इसको a के अज्यूम करें तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या हो जाएगा कि x ऑफ z इज इक्वल टू 1/1 माइनस ए जेड इनवर्स, गिवन दैट हमारे पास ए जेड इनवर्स क्या होना चाहिए, लेस देन क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, लेस देन 1 होना चाहिए, राइट। तो अगर इसको मैं सॉल्व करूं, मैं इस तरह इसको लिख सकता हूं कि 1/z मस्ट बी लेस देन 1। अब ये z जब इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, z मस्ट बी ग्रेटर देन a, ठीक है। तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ z मतलब जो हमारे पास r था, रिमेंबर, तो उसका जो वैल्यू होना चाहिए वो a से हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए, तो ही हमारे पास कन्वर्ज करेगा सिग्नल। अगर इससे लेस होगा तो ये डाइवर्ज करेगा, इक्वल या लेस होगा तो डाइवर्ज करेगा, ठीक है। तो देखें ये हमारे पास इसकी रीजन ऑफ कन्वर्जेंस बन रही है। इसको अगर मैं प्लॉट करना चाहूँ तो प्लॉट किस तरह होगा कि ये रियल पार्ट ऑफ जेड है, ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड है वाई एक्सिस पर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारा यूनिट सर्किल है, ठीक है, और ये कोई हमारे पास ए पॉइंट है, सही है। तो जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस बनेगा वो क्या बनेगा, इस तरफ बनेगा, ठीक है, आउटसाइड, आउटसाइड ऑफ यूनिट सर्किल। अच्छा, अब इसको जरा हम सॉल्व भी कर सकते हैं कि अगर फॉर एग्जाम्पल इसको मैं फर्दर सॉल्व करूं तो 1 माइनस ए अपॉन जेड, तो ये एलसीएम क्या हो जाएगी, 1 अपॉन जेड माइनस ए, और ये जेड जो डिवाइड में आ गया ये ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो अब देखें सिग्नल इनफाइनाइट कहाँ पर हो जाएगा। अब हम अगर यहाँ से देखें z माइनस ए इक्वल टू 0 को पुट करें तो z इज इक्वल टू ए, एक ऐसा वैल्यू अगर मैं यहाँ पर पुट करूँ तो z अपॉन, फॉर एग्जाम्पल ए पुट करूँ तो a अपॉन a माइनस ए, तो a माइनस ए क्या हो जाएगा, 0, एनीथिंग डिवाइड बाय 0 इज इन्फिनिटी, सही है। तो ऐसे वैल्यूज जहाँ पर हमारे पास एम्पलीट्यूड सिग्नल का इनफाइनाइट हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, पोल्स कहते हैं, पोल्स ऑफ द सिस्टम, ठीक है। ऐसे वैल्यूज जहां पर, ऐसे वैल्यूज हम अगर पुट करें जहां पर हमारे पास क्या हो, सिग्नल का एम्पलीट्यूड इनफाइनाइट हो जाए तो हम उसको क्या कहते हैं, पोल्स ऑफ द सिस्टम कहते हैं, सही है। तो ये आगे हम डिस्कस करते हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, ये पोल्स कहां पर लाई करना चाहिए, ठीक है। और इसका जीरो कहां पर होगा, अब जीरो इसका कहां पर होगा, जीरो इक्वल टू जीरो पर होगा, ठीक है। जीरो का मतलब क्या है कि भाई देखें अगर यहाँ पर हम z की जगह जीरो पुट कर दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जीरो अपॉन माइनस है, और जीरो अपॉन एनीथिंग इज जीरो। तो अगर हमारे पास इस इक्वेशन में पर्टिकुलर में अगर हम जीरो पुट करेंगे तो हमारे पास आउटपुट क्या मिलेगा, इस ओवरऑल सिस्टम का जीरो मिलेगा। तो ऐसे वैल्यूज जो जो न्यूमिनेटर को जीरो बना दें, सही है। इसको अगर मैं इस तरह लिखूं कि भाई हमारे पास एक्स ऑफ जेड जो है वो बराबर है डी जेड अपॉन, सॉरी न्यूमिनेटर, डिनोमिनेटर तो नीचे आता है ना, तो
इसको मिटा देता हूँ। न्यूमिनेटर ऑफ जेड अपॉन डिनोमिनेटर ऑफ जेड, सही है। ऐसे वैल्यूज जहां पर ये न्यूमिनेटर जीरो हो जाए, जेड के ऐसे वैल्यूज, तो उसको हम क्या कहते हैं, जीरोज ऑफ द सिस्टम्स, ठीक है। और ऐसे वैल्यूज जहां पर ये डिनोमिनेटर जीरो हो जाए, तो एनीथिंग डिवाइड बाय जीरो इज इन्फिनिटी, जहां पर ये जीरो हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, पोल्स ऑफ द सिस्टम, ठीक है। तो दोबारा हम इसको एक मरतबा देख लेते हैं कि हमारे पास जो इनपुट सिग्नल था वो क्या है, कि भाई ये हमारे पास इनपुट सिग्नल है और हमें क्या करना है, इसका जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। तो बाय डेफिनेशन हमारे पास एक्स ऑफ जेड किसके बराबर है, समेशन एन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ एन जेड पावर है, राइट। अब एक्स ऑफ एन तो हमको गिवन है, ये हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन है, डेफिनेशन है जेड ट्रांसफॉर्म की। तो हमने क्या किया, एक्स ऑफ एन की जगह ये इनपुट हमने यहाँ पर सिग्नल एक्स ऑफ एन की जगह हमने ये रख दिया, ठीक है। अच्छा, अब हमको पता है कि u ऑफ n जो है हमारे पास यूनिट स्टेप सिग्नल है, जो जीरो से इन्फिनिटी तक एम्पलीट्यूड इसका 1 होता है, तो माइनस इन्फिनिटी से -1 तक ये सिग्नल जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये जीरो मल्टीप्लाई होगा उस सिग्नल के साथ। तो हमारे पास आउटपुट क्या बनेगा, बाकी हमारे पास सिग्नल क्या बच जाएगा, n फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी a पावर n z पावर -n। अब देखिए मैंने u ऑफ n नहीं लिखा, क्योंकि u ऑफ n का इफेक्ट यहाँ पर लिमिट्स को पे आ गया है। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने जो हमारे पास a और z पर दोनों पर पावर n है, तो मैंने इसको इस तरह लिख दिया, ठीक है। अब हमने इसको सॉल्व किया यूजिंग दिस आइडेंटिटी। तो अगर a पावर n हो, जीरो से लेकर इनफाइनाइट सम हो, तो वो किसके बराबर होता है, 1/1 माइनस a, ठीक है। गिवन दैट a का वैल्यू जो हमारे पास एब्सोल्यूट ऑफ a मस्ट बी लेस देन 1। तो मैंने देखें यहाँ पर अगर इसको हम a कंसीडर करें, तो ये देखें भाई 1/1 माइनस a ही लिखा हुआ है। गिवन दैट a मस्ट बी लेस देन 1, तो हमने a का वैल्यू वापस रख दिया, तो a z इनवर्स यहाँ पर भी आ गया, यहाँ पर भी आ गया। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, अब देखें z इनवर्स है, z इनवर्स का मतलब क्या है, 1/z। तो ये इसको मैं इस तरह भी लिख सकता था, एक स्टेप मैंने यहाँ से मिस कर दिया है, कि a/z इज, ठीक है। और इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, ये आइडेंटिटी है, काशी ओलर पता नहीं इसको कहते हैं शायद, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, राइट। तो ये यहाँ पर मैंने डायरेक्ट स्टेप लिख दिया था। अब ये z इस तरफ डिवाइड हो रहा है, तो उस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो z मस्ट बी ग्रेटर देन a। तो ये इसकी रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है, और हम इसको इस तरह प्लाट करते हैं, ठीक है। यहाँ तक इसका सॉल्यूशन मुकम्मल हुआ। लेकिन अगर हम ये देखना चाहें कि ये सिग्नल कहाँ पर जीरो हो जाता है, कहाँ पर इनफाइनाइट हो जाता है, तो मैंने इसको थोड़ा सा, अब ये ए जेड इनवर्स को क्या किया, अब जेड इनवर्स का मतलब क्या है कि जेड इसके साथ डिवाइड हो रहा है। अब इसकी अगर हम एलसीएम फाइंड करें तो क्या होगी, जेड माइनस ए अपॉन जेड। तो ये जो डिवाइड के डिवाइड में टर्म होता है वो मल्टीप्लाई में चला जाता है, तो ये यहाँ पर आ गया। अब यहाँ से देखें कौन से वैल्यूज हैं जहाँ से न्यूमिनेटर हमारा जीरो हो रहा है, ए की वैल्यू है जीरो, क्योंकि हमारे पास ऊपर सिर्फ जेड मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम इसका एक ही हमारे पास जीरो है, जीरो पर, ठीक है। मतलब ऐसा वैल्यू जो कि इस फंक्शन में पुट करें और हमें आउटपुट जीरो मिले, तो वो एक ही है। यहाँ पर अगर हम जीरो पुट करते हैं जेड की जगह, तो क्या हो जाएगा, जीरो अपन माइनस ए, तो जीरो अपन एनीथिंग इज जीरो, ठीक है। तो हमें यहाँ पर इसका जीरो सिर्फ एक ही है सिग्नल सिस्टम का। तो मैं यहाँ पर इसको अगर रीजन ऑफ कन्वर्जेंस पे देखें, जीरो को हम किस तरह प्लाट करते हैं, जीरो को हम जीरो के साथ मार्क करते हैं इस तरह छोटा सा, और पोल को हम इसे किरास के साथ मार्क करते हैं। अच्छा, अब इसका पोल कहाँ पर होगा, पोल का मतलब क्या है कि वो ऐसा वैल्यू जहाँ पर सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड हो वो इनफाइनाइट हो जाए। देखिए अगर यहाँ से हम इसको इक्वल करें जीरो के, जेड माइनस ए इक्वल टू जीरो, तो हमें पोल मिल जाएगा। तो हमारे पास इसका पोल कहाँ पर है, ए पर है। अब पुट करके देखें वैल्यू, अगर हम एक्स ऑफ ए यहाँ से कंप्यूट करें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स ऑफ ए अपान ए माइनस ए। तो ए अपान जीरो किसके बराबर होता है, इन्फिनिटी के। तो इसका एक ही पोल है जो ए पर है, और देखिए यहाँ पर मैंने इसको मार्क किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, तो दैट्स इट। ये हमारे पास पहला एग्जांपल है। अच्छा, देखिए इसकी रीजन ऑफ कन्वर्जेंस मैंने यहाँ पर बनाई हुई है, इसका एक ही जीरो है, वो जीरो पर है, और इसका पोल जो है वो कहाँ पर है, ए पर है, और इसकी रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या है, आउटसाइड माइनस ए, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं एक दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल अब इस टाइम हमारे पास क्या है, कि हमारे पास एक इनपुट सिग्नल है जो कि
इसके बराबर है। देखें ये लेफ्ट हैंड सीक्वेंस लग रही है। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, हमें पता चल जाएगा कि इसका आउटपुट क्या है। अब बाय डेफिनेशन ये किसके बराबर होता है z ट्रांसफॉर्म, x ऑफ z इज इक्वल टू समेशन n फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x ऑफ n z पावर माइनस n। ठीक है, तो अब हमारे पास x ऑफ n का वैल्यू हमें गिवन है, जो किसके बराबर है, जो कि बराबर है माइनस a पावर n u ऑफ माइनस n माइनस 1। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास z पावर माइनस है। ठीक, अच्छा अब ये जो हमारे पास सिग्नल यहाँ पर मैंने लिखा है u ऑफ माइनस n माइनस 1, इसको जरा ड्रा करके देखते हैं कि ये किस तरह होगा। अब आपको अगर याद हो, मैं इसको यहाँ पर ड्रा करता हूँ ताकि वहाँ पर हमारे पास स्पेस बचे। ठीक है, अच्छा आप देखें, अगर आपको याद हो कि हम u ऑफ n किस तरह प्लॉट करते हैं, u ऑफ n हमारे पास 1 होता है, फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ n हमारे पास क्या होता है, इसका एम्पलीट्यूड 1 होता है। लेकिन अब हमें हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंस है। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हम शिफ्टिंग करते हैं, हम प्लॉट क्या कर रहे हैं u ऑफ माइनस n माइनस 1। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, शिफ्टिंग करते हैं। शिफ्टिंग का मतलब क्या है, सबसे पहले हम एक यूनिट डिले करेंगे। तो इसको अगर डिले करेंगे तो ये 0 से जो सिग्नल स्टार्ट हो रहा था, अब क्योंकि 1 यूनिट का डिले है तो ये 1 से स्टार्ट होगा। ठीक है, एंड सो ऑन, ये इन्फिनिटी तक चला जाएगा। लेकिन देखिए अब हमें क्या करना है, इसको टाइम रिवर्सल भी करना है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में हमने इसको सिर्फ शिफ्ट किया, सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, इसका टाइम रिवर्सल बनाना है इसको। तो ये अच्छा, इसका ये 1 से स्टार्ट हो रहा है। अच्छा अब हम क्या करते हैं, इसका फ्लिप्ड वर्जन भी देखें, u ऑफ माइनस n माइनस 1। तो जो सिग्नल 1 से आगे स्टार्ट हो रहा था, अब ये क्या होना चाहिए, फ्लिप होने के बाद माइनस 1 से इस तरफ हो जाएगा। सही, एम्पलीट्यूड उसका पॉजिटिव ही रहेगा, तो ये माइनस इन्फिनिटी तक चला जाएगा। सही, तो देखें अब इसकी लिमिट क्या हो रही है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर माइनस 1 तक। ठीक है, तो अब हमारे पास जो समेशन थी, अब कहाँ से लेकर कहाँ तक स्टार्ट हो जाएगी, फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1। क्योंकि इसके बाद जो हमारे पास ये सिग्नल है, ये सारा इस सिग्नल हमारे पास क्या है, 0 है। ठीक है, और 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज 0। तो बाकी हमारे पास जो भी सिग्नल था a पावर n, जो भी था मेरे ख्याल में इस तरह था, वो इस 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर इस तरफ तो 0 हो जाएगा, बाकी इसकी एग्जिस्टेंस सिर्फ इस तरफ बच जाएगी। ठीक है सर जी दा, सर इसमें पॉजिटिव में भी तो हो सकती है ना सर, अगर माइनस से मीन्स कॉमन लें इसमें से। किसमें, हाँ माइनस कॉमन है, लेकिन देखें हमारे पास अभी तो हम सिर्फ टाइम एक्सिस की बात कर रहे हैं ना, कि टाइम एक्सिस कहाँ तक डिफाइन होगा। समझ रहे हैं कि भाई फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास अल्फा पावर n था कोई सिग्नल, फॉर एग्जाम्पल अगर माइनस को फिलहाल हम कॉमन ले लें आपकी बात, ठीक है, ये इस तरह कोई सिग्नल बन रहा था। सही है, ये इस तरह कोई सिग्नल बन रहा था और हमारे पास 0 फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है। ठीक है, लेकिन क्योंकि अब यूनिट स्टेप जो हमारे पास है वो कहाँ से आ रहा है, ये माइनस इन्फिनिटी से फॉर एग्जाम्पल यहाँ तक माइनस 1 तक आ रहा है। सही है, तो अब देखें ये 0 जो है मल्टीप्लाई जब होंगे इसके बाकी एम्पलीट्यूड के साथ, तो ये 0 से लेकर जो हमारे पास आगे के इंडेक्स हैं वो सारे 0 हो जाएंगे, क्योंकि ये सिग्नल यहाँ पर डिफाइंड नहीं है। इंडेक्स बाय इंडेक्स मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर हमें 0 ही मिलेगा। सिर्फ इसका आउटपुट कहाँ पर मिलेगा, माइनस 1 से इस तरफ के वैल्यूज मिलेंगे, है ना, राइट। तो इस वजह से हमारी समेशन क्या हो गई, अब जो एग्जिस्ट करेगी वो माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1 तक करेगी। बाकी अगर हम इस तरह देखें कि हम इस तरह लिखें कि n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ड्यू टू दिस इफेक्ट, क्योंकि हमारे पास यूनिट स्टेप जो ये शिफ्टेड यूनिट स्टेप है, ये हमारे पास बाकी के सिग्नल को 0 के साथ मल्टीप्लाई करके खत्म कर देगा। क्लियर, ओके सर। हमारे पास जो समेशन बचेगी वो किस तरह बचेगी, n फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1। अब ये माइनस में कॉमन निकाल के रख देता हूं, a पावर n z पावर माइनस n। ठीक है, अभी तक कोई गलती तो नहीं है। अच्छा अब देखिए, अभी हम इसको फर्दर सॉल्व अगर करें तो क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं कि n फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी a z इनवर्स अल्फा पावर n। ठीक है, इस तरह लिख सकते हैं। देखें अब हमारे पास एक थोड़ा सा मसला आ गया है। मसला ये है कि भाई हमने जो सॉल्व किया हुआ है, हमने वो इस तरह सॉल्व किया है कि हमारे पास जो n होता है वो फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, जो नॉन सीक्वेंस है वो किसके बराबर होती है, 1/1 माइनस ए, राइट। गिवन दैट हमारे पास a मस्ट बी लेस देन 1।
लेकिन यहाँ पर देखें कुछ चेंज है, सही है। यहाँ पर इस तरह ये सॉरी ये फ्रॉम -1 स्टार्ट होगा, सॉरी -∞ टू -1 होगा ये। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, मैं चाहता हूं कि मैं इसको इस तरह की इक्वेशन में कन्वर्ट करूं और फिर उसको सॉल्व करूं। तो एक तरीका ये है कि मैं अगर इस तरह लिखूं कि भाई हमारे पास एक डमी वेरिएबल हम डिफाइन करते हैं m, जो कि बराबर है -n के, सही है। तो हमारे पास समेशन किस तरह चेंज हो जाएगी, अब देखें माइनस, क्योंकि हमारा m क्या है -n के बराबर है, तो अगर n हमारा -∞ था तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा +∞। और कहां तक था -1 तक, तो -1 मल्टीप्लाई बाय माइनस इज +1। और हमारे पास a z इनवर्स -m, राइट, क्योंकि m जो हमारे पास अगर m हमारा -n के बराबर तो n हमारा -m के बराबर होगा, तो ये n हमारा किसके बराबर हो गया, -m के। ठीक है, अच्छा एक स्टेप और चलते हैं, मैं इसको समेशन को मैं नेगेटिव साइन, जी रहा, नेगेटिव साइन जो कॉमन ली थी वो भी तो आएगी ना। नेगेटिव साइड को कॉमन देखें, मैं तो एक सर बार बाहर दोबारा, निकाली थी तो सर वो ऊपर हाँ वाले उसको उसको अभी हमने सॉल्व नहीं किया, ठीक है। तो मैं इसको अगर मैं इस तरह लिखूं कि भाई इसको मैं प्लस कर देता हूं, इसको मैं -1 और इस तरह लिख दूं, कर सकता हूं भाई। यस सर। अच्छा, अब देखें, क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं कि भाई अगर इसको मैं अगर अब सॉरी यहाँ पर m होगा, n नहीं होगा ना, ये हमारे पास अब m होगा। अच्छा, अब देखिए जरा, मैं इसको अगर प्लाट करूं, पहले m का वैल्यू मैं 1 करूं तो हमारे पास क्या होगा, a इनवर्स z होल पावर 1, सही है, प्लस a इनवर्स z होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि m का वैल्यू पहले 1 था, अब m का वैल्यू 2 है, उसके बाद m का वैल्यू क्या होगा 3 एंड सो ऑन, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर देखें, अगर a इनवर्स z को मैं कॉमन निकाल लूं तो बाकी हमारे पास क्या बच जाता है 1 प्लस a इनवर्स z, ठीक है, प्लस a इनवर्स z होल स्क्वायर एंड सो ऑन। अब देखें ये हमारे पास वही फिर वही हमारे पास पैटर्न बन रहा है, तो इसको अगर हम सम करें तो वो किसके बराबर हो जाएगा 1/1 माइनस a इनवर्स z, ठीक है, टाइम्स a इनवर्स z, राइट। तो इसकी रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या बनेगी, a इनवर्स z मस्ट बी लेस देन -1, ठीक है। तो अगर हम इसको इस तरह लिखें कि अब ये z 1/a है, अगर उस तरफ चला जाएगा, अब देखिए z हमारा उस तरफ चला जाएगा तो ये मस्ट बी लेस देन क्या हो जाएगा, सॉरी ये मैंने उल्टा काम कर दिया है। अब हमारे पास अगर z इस तरफ चला जाएगा तो z मस्ट बी ग्रेटर देन -1/a, इसी तरह हो रहा है, या मैंने कहीं पर कोई मैं स्टेप मिस कर रहा हूँ, नहीं 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 सॉरी, देखिए मैंने कितना बड़ा ब्लंडर किया है, आप मुझे बता नहीं रहे, और इसको मैं इरेज करता हूँ। देखें, अब हमारे पास रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या होनी चाहिए, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस हमें यहां से डिटरमिन होगी, दिस a मस्ट बी लेस देन 1, तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ z/a मस्ट बी लेस देन 1, देन z मस्ट बी लेस देन क्या होगा, a होना चाहिए, राइट। अच्छा, अब हमारे पास फाइनल आउटपुट क्या है, फाइनल आउटपुट हमारे पास ये वाला है। इसको अगर हम थोड़ा सा सॉल्व करें तो क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं कि अब ये मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर, तो हमारे पास क्या मिलेगा a इनवर्स z, और एक माइनस हमारे पास इसके साथ मल्टीप्लाई में था, अगर याद हो आपको, सही है, वो माइनस मल्टीप्लाई में आ रहा है, वो मैं यहाँ पर इसको अभी लिख देता हूँ। अच्छा, अब देखें 1 माइनस ए इनवर्स जेड, मैं एक काम करता हूँ, मैं ए जेड इनवर्स को मल्टीप्लाई भी करता हूँ और डिवाइड भी करता हूँ, ये हम कर सकते हैं, ये हम हरकत करते रहते हैं। तो हमारे पास ऊपर क्या बच जाएगा, देखें ए
मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स हमें 1 मिल जाएगा, z मल्टीप्लाई बाय z इनवर्स वो भी 1 हो जाएगा, तो -1 अपान, अब ये ए जेड इनवर्स 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमें क्या मिलेगा, ए जेड इनवर्स माइनस, अब ये a टाइम्स a इनवर्स इज 1, z टाइम्स z इनवर्स इज अगेन 1। तो हमारे पास सिग्नल कुछ इस तरह बन गया है, ठीक है। तो अगर हम माइनस को नीचे वाले एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिल जाएगा, 1 अपान 1 माइनस ए जेड इनवर्स। अगर आपको याद हो तो जो प्रीवियस सिग्नल था उसका अगर देखें हमने आउटपुट क्या कैलकुलेट किया था, 1 अपान, ये देखें ये वाला 1 अपान 1 माइनस ए जेड इनवर्स, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी आउटपुट बिल्कुल सेम है, सिर्फ रीजन ऑफ कन्वर्जेंस जो है इसकी वो डिफरेंट है। अब इसकी रीजन ऑफ कन्वर्जेंस किस तरह बनेगी, अगर मैं यहाँ पर बनाना चाहूँ इसकी रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, अब जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस बनेगी, फॉर एग्जांपल ये 1 है, ठीक है, तो ये -1, ये ड्राइंग का आप कंसीडर कर लीजिएगा, कोई ए पॉइंट है फॉर एग्जांपल दिस वन, तो जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होगी वो क्या बनेगी, वो यूनिट सर्किल के अंदर बनेगी, राइट। बाहर हमारे पास सिग्नल डाइवर्ज करेगा, इस ए के बाद सिग्नल हमारे पास अंदर की तरफ क्या करेगा, डाइवर्ज कन्वर्ज करेगा, इससे बाहर क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा, ठीक है। दिस इज द फाइनल कैलकुलेशन। अच्छा, अब इसके देखें, यहाँ पर मैंने रीजन ऑफ कन्वर्जेंस दिखाई हुई है कि ये जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस इसकी होगी वो क्या होगी। अच्छा, अब इसका देखें जीरो, और अगर पोल कैलकुलेट करना चाहें तो आप यहाँ से पोल, फिर वही तरीका है, देखें इसका पोल हमारे पास ए पर होगा और जीरो इसका जीरो पर होगा, ठीक है। मैं इस तरह कहता हूँ कि जीरो ऑफ दिस सिग्नल मस्ट बी एट जीरो एंड पोल्स ऑफ दिस सिग्नल आर ए, ठीक है। तो यहाँ पर देखें जीरो हमारे पास जीरो ओरिजिन पर किया हुआ है और ए हमारे पास ये है, और इसकी रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या है, लेस देन ए है, ठीक है। तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस इज इक्वल नेसेसरी, ठीक है। अब देखिए हमारे पास एक्सप्रेशन क्या है, वही है ए इनवर्स जेड, ये ठीक है, सॉरी ए जेड इनवर्स है, ठीक। लेकिन इसकी रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, डिस्क शेप्ड रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। हमारे पास माइनस इन्फिनिटी की साइड जो सीक्वेंसेस एग्जिस्ट करती हैं उनकी जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होती है वो अंदर की तरफ होती है, ठीक है, और उसको डिस्क शेप्ड कहते हैं। और जो राइट हैंडेड सीक्वेंसेस होती हैं वो उनकी रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या होती है, रिंग शेप्ड होती है, इसको हम क्या कहते हैं, रिंग शेप्ड आरओसी, ठीक है। तो क्योंकि अब ये देखें, ये इन्फिनिटी से तो कम ही होगा इसका वैल्यू कोई ना कोई, तो एक रिंग बन जाती है, सही है। तो इसको हम क्या कहते हैं, रिंग शेप्ड रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। और जो हमारे पास, क्योंकि अब ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट से कम ही इसकी रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होती है, तो ये जीरो से जीरो तक हमारे पास शेडेड रीजन बन जाता है, तो देखें एक डिस्क जैसा नजर आ रहा है, सही। तो इसको हम डिस्क शेप्ड रीजन ऑफ कन्वर्जेंस कहते हैं। अच्छा, व्हाट इफ फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इस तरह का कोई सिग्नल हमें मिल जाए, देखें अब हमें एक चीज तो पता चल गई है कि अगर हमारे पास एक सिग्नल हो ए पावर एन यू ऑफ एन, तो उसका जो जी ट्रांसफॉर्म होता है वो क्या होता है, 1/1 माइनस ए जेड इनवर्स, और जेड मस्ट बी ग्रेटर देन ए, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें, अगर मैं इस अगर मैं इसको इस तरह लिखूं कि जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/3 होल पावर एन, ठीक है, u ऑफ n, तो देखें ये a की जगह सिर्फ हमारे पास क्या है, 1/3, तो इसका क्या हो जाएगा कन्वर्जन, 1/3 z इनवर्स, और इसकी जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होगी वो क्या होगी, ग्रेटर देन 1/3, राइट। लाइक वाइज यहाँ पर देखें सिर्फ 1/2 है, तो z ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/2 होल पावर n u ऑफ n किसके बराबर हो जाएगा, 1/1 माइनस 1/2 जेड इनवर्स, और इसकी रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या हो जाएगी, 1/2, ठीक है। तो ओवरऑल जो आरओसी होता है आपको याद होगा वो किसके बराबर होता है, आरओसी ऑफ फर्स्ट इंटरसेक्शन विथ आरओसी ऑफ सेकंड। अब जरा हम इसको प्लॉट करते हैं
कि एक के जो ROC है वो 1/3 से 1/3 क्या होता है 0.33, ठीक है। और दूसरे की जो ROC है इसकी बाहर की तरफ ROC है, ठीक है, आउटसाइड। अच्छा, दूसरे की जो ROC है वो 1/2, 1/2 0.5, तो ये 1/3 से आगे ही कहीं पर होगा, तो ये इस तरफ है, ठीक है, बाहर की तरफ। अब देखें इनका कॉमन रीजन कौन सा है, 1/2 के बाद ये आई डोंट नो कि अगर इफ हमारे पास, ठीक है, तो जो हमारे पास इनकी कॉमन रीजन है वो क्या है, ROC इनकी क्या है 1/2 के बाद में है। तो हमारे पास अगर मैं इसको x ऑफ z यहाँ पर लिखूं तो ये 7 तो कांस्टेंट है, 1/1 माइनस 1/3 z इनवर्स, ठीक है, -6 हमारे पास कांस्टेंट, वो हमने वहीं पर रख दिया है, और 1/2 n u पावर 1/2 पावर n u ऑफ n का क्या हो जाएगा -1/z इनवर्स, ठीक है। और इसकी जो ROC होगी वो क्या होगी कि रियल पार्ट ऑफ z मस्ट बी, या एब्सोल्यूट ऑफ z इस तरह लिख दें, एब्सोल्यूट ऑफ z मस्ट बी, सॉरी ग्रेटर देन, ये लेस देन नहीं होगा, मैं इसको दोबारा लिखता हूँ, z मस्ट बी ग्रेटर देन 1/2, ठीक है। सर ये डायरेक्ट कर दिया ना आपने। हाँ, क्योंकि अब देखिए हमारे पास इस सिग्नल का हमें यहाँ से मिल रहा है z ट्रांसफॉर्म, राइट, और अब दोबारा से कैलकुलेट करें भी वही होगा, ठीक है, क्योंकि हमने देखिए जनरलाइज सीक्वेंस a पावर n हमने लिखा हुआ है। अब a का वैल्यू अगर 1/3 होगा तो हमारे पास देखें सिर्फ हमने यहाँ पर a का वैल्यू 1/3 रिप्लेस करना था और यहाँ पर रिप्लेस करना, ठीक है। ये क्योंकि हमने सीक्वेंस पहले कैलकुलेट की हुई है तो दोबारा से इनको कैलकुलेट करने का फायदा नहीं है, सही है। आउटपुट वही आएगा अगर आप अगर अलग से कैलकुलेट करना चाहें, ठीक है। अगर मैं इसको सही है, उसी बस एक एक की जगह पे हमने वैल्यू पुट कर लिया ये। वैल्यू पुट कर दी बस डायरेक्ट, अगर आप वैसे बाय थ्रू प्रोसेस हल करेंगे तो भी आपको आउटपुट यही मिलेगा, क्लियर, सही है। तो अब इनकी रीजन ऑफ कन्वर्जेंस देखें यहाँ पर लिखी हुई है कि हमारे पास जो पहला सिग्नल था 1/3 होल पावर n u ऑफ n, उसकी रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या थी 1/3 से आउटसाइड थी, सही है। और दूसरा जो हमारे पास था 1/2 होल पावर n u ऑफ n, उसकी रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या है 1/2 के आउटसाइड, ठीक है। तो अब देखें 1/3 और 2/3 से बाहर अगर दोनों की हमारे पास रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है तो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा 1/2 के बाद ही होगा, सही है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ ये हाफ कोई पॉइंट है, तो ओवरऑल जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस सिस्टम की क्या होगी वो 1/2 से आउटसाइड होगी, क्लियर बाबा, ये गल क्लियर है। यस सर, क्लियर। ओके, सो आगे चलते हैं। अच्छा, कुछ प्रॉपर्टीज हैं आरओसी की, कि पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि आरओसी ऑफ एक्स ऑफ जेड कंसिस्ट ऑफ अ रिंग इन जेड प्लेन सेंटर्ड अबाउट द ओरिजिन, ठीक है। अब आपको अब मैंने को बताया था कि अभी अभी हमने डिस्कस किया कि अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई ए पॉइंट है और उसके आउटसाइड अगर रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है तो देखें ये इन्फिनिटी से तो कम ही होगा, तो एक रिंग का शेप बनेगा, सही है, रिंग शेप, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई ए पॉइंट है और आरओसी उससे लेस है, ठीक है, अगर z इज लेस देन a तो हमारे पास क्या होगा एक डिस्क का शेप बनेगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये कह रहा है। अच्छा, आरओसी डज नॉट कंटेन एनी पोल, ठीक है, हमारे पास आरओसी जो होता है उसमें कोई पोल नहीं होता। अगर आपको देखें यहाँ पर याद हो a पावर n u ऑफ n का अगर हमने z ट्रांसफॉर्म फाइंड किया तो किसके बराबर था 1/1 माइनस ए जेड इनवर्स, और हमने कहा था कि z मस्ट बी ग्रेटर देन a, सही है, z इज नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू a, तो हमारे पास a क्या है वो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में कभी नहीं आएगा, सही है। अगर यहां पर देखें तो हमने क्या कहा था, देखें अब ये हमने जब भी कहा है अगर इस केस में हम देख रहे हैं कि z मस्ट बी लेस देन a, ये पोल जो होगा, ये पोल जो हमने यहाँ पर बनाया हुआ है
ये कभी भी रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में नहीं आएगा। अगर आपने कभी कैलकुलेशन की है और उसमें आपका जो पोल है वो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में आ रहा है तो वो गलत है, सही है, वो ऐसा कभी नहीं हो सकता। पोल मस्ट ऑलवेज बी आउटसाइड ऑफ द यूनिट सर्कल। जीरो कैन बी द पार्ट ऑफ हमारे पास आरओसी। जीरो हमारा आ सकता है यूनिट अपना उसमें रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में, लेकिन पोल कभी भी नहीं आ सकता। देखिए इनफाइनाइट हमारे पास अगर एम्पलीट्यूड आ जाए तो वो वैसे ही अनस्टेबल हो जाता है। तो अब कन्वर्ज तो हुआ नहीं, डाइवर्ज हो गया। तो पोल पे हमारे पास क्या होता है, एम्पलीट्यूड इनफाइनाइट होता है, तो कभी भी इनफाइनाइट एम्पलीट्यूड रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में नहीं आ सकता। ठीक है, ओके। अच्छा, अब कह रहा है कि इफ एक्स ऑफ एन इज अ फाइनाइट ड्यूरेशन देन आर ओ सी इज इंटायर जेड प्लेन। ठीक है, एक्सेप्ट जेड इज इक्वल टू जीरो एंड जेड इज इक्वल टू, ये इन्फिनिटी है, मैंने 2 जीरो लिख दिए हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा ना हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सिग्नल है एक्स ऑफ एन जो कि बराबर है फॉर एग्जाम्पल -1, 0 और 1 की। तो अगर हम इसका जी ट्रांसफॉर्म कंप्यूट करें तो वो क्या होगा, n फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ एन जेड पावर -n। अब देखें ये एक्स ऑफ एन कहाँ से लेकर कहाँ तक एग्जिस्ट करता है, -1 से लेकर +1 तक। तो इसकी लिमिट जो हो जाएगी वो n फ्रॉम -1 टू +1 हो जाएगी, एक्स ऑफ एन जेड पावर -n। अब इसको जरा हम ओपन करते हैं तो क्या होगा, एक्स ऑफ -1, इसको मैं +1 करता हूँ ताकि आपको पता चले कि ये हमने एम्पलीट्यूड्स की बात की है, इंडेक्सेस हमारे अलग हैं, ये 0 पर है, ये 1 पर है, ये -1 पर है। तो क्या हो जाएगा जेड पावर, अच्छा देखें अब फार्मूला क्या है, जेड पावर -n, सही है। तो माइनस हमारे पास ऑलरेडी n हमारा माइनस में है, तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो मैं जेड पावर 1 लिख देता हूँ, एक्स ऑफ 0 जेड पावर 0 प्लस एक्स ऑफ 1 जेड पावर -1। ठीक है, तो एक्स ऑफ -1 का वैल्यू क्या है यहाँ पर देखें, +1। तो ये क्या हो जाएगा, जेड प्लस एक्स ऑफ 0 हमारे पास क्या है, 0 है, प्लस और एक्स ऑफ 1 हमारे पास क्या है, 1 है। तो यहाँ पर 1 अगर मल्टीप्लाई जाए तो ये जेड इनवर्स हो गया। अच्छा, अब एक चीज नोट करें, यहाँ पर देखें कि इस सीक्वेंस में अगर मैं 0 पुट करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर z इज इक्वल टू 0 पुट करता हूँ तो हमारे पास यहाँ पर ये देखें, ये जो है हमारे पास है, इसको मैं इस तरह भी लिख सकता था 1/z, सिर्फ इस पर्टिकुलर की बात कर रहा हूँ। तो 1 डिवाइड बाई 0 इज इन्फिनिटी, सही है। तो इसकी आरओसी में 0 नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इन्फिनिटी पुट करूं तो ये 1/इन्फिनिटी तो 0 हो जाएगा, लेकिन ये फिर अगेन इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इसकी आरओसी क्या होगी, इंटायर जेड प्लेन होगी, इंटायर जेड प्लेन, एक्सेप्ट हमारे पास जेड के नॉट बी इक्वल टू 0 और इन्फिनिटी, सही है। इसमें हम z का कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन कभी भी हम z को 0 या इन्फिनिटी नहीं पुट कर सकते। जैसे ही हम इसको 0 इनपुट करेंगे तो हमारे पास आउटपुट क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। 0 पुट करेंगे तो ये हमारे पास टर्म हमारा इन्फिनिटी चला जाएगा, और अगर इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये हमारे पास जो इसका टर्म है ये इन्फिनिटी चला जाएगा। तो यही देखिए, प्रॉपर्टी को दोबारा पढ़ते हैं। इफ एक्स ऑफ एन इज फाइनाइट ड्यूरेशन, देखें इसकी ड्यूरेशन फाइनाइट है फ्रॉम -1 टू +1, ठीक है, ये एग्जिस्ट करता है। देन द आरओसी इज इंटायर जेड प्लेन एक्सेप्ट पॉसिबली जेड इज इक्वल टू 0 और इन्फिनिटी। मतलब हो सकता है कभी 0 उसका पार्ट ना हो, कभी इन्फिनिटी उसका पार्ट ना हो, लेकिन बाकी इंटायर प्लेन हो सकता है। अच्छा, अगर इसका हमें डेल्टा एन का अगर हमें फाइंड करना हो जेड ट्रांसफॉर्म, तो किसके बराबर होगा, एन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डेल्टा एन जेड पावर -n। अब आपको पता है डेल्टा एन हमारे पास क्या होता है, डेल्टा एन हमारे पास 1 होता है व्हेन n इज 0, 0 अदरवाइज, ठीक है। तो ये सिर्फ कहाँ पर एग्जिस्ट करेगा, सिर्फ जब n इज इक्वल टू 0 होगा। तो ये माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी सब खत्म हो जाएगा, सिर्फ हमारे पास z पावर 0 बचेगा, और z पावर 0 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो हम इस तरह लिखते हैं कि z ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल्टा n इज 1, ठीक है। अब व्हाट अबाउट दिस वन, हाँ भाई,
ये कब 1 होगा? डेल्टा n माइनस के अगर आपको याद हो वो कब होता है 1? वेन n इज इक्वल टू के, राइट? तो अब मैं इसको यहाँ तो हल नहीं कर सकता, व्हाइट बोर्ड पर इसको हल करते हैं। अब दूसरा हमारे पास सिग्नल है x ऑफ n इज इक्वल टू डेल्टा n माइनस 1। तो x ऑफ z हमारा किसके बराबर होगा? समेशन n फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डेल्टा n माइनस 1 z पावर माइनस n। अच्छा, अब अगर n में पॉजिटिव 1 पुट करूं तो हमें क्या मिलेगा भाई यहाँ से? अच्छा, चलिए मैं उस पर बाद में आता हूँ। अब मैं अगर n का वैल्यू 1 पुट करूँ तो ये तो खत्म हो जाएगा। ये यहाँ पर क्या मिलेगा? डेल्टा ऑफ 0 और माइनस 1। तो डेल्टा ऑफ 0 हमारे पास 1 होता है, तो हम इस तरह लिख सकते हैं कि z ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल्टा n माइनस 1 इज z इनवर्स। ठीक है, अब देखें इसकी आरओसी क्या होगी। कोई भी वैल्यू z का पुट करें, इसका कोई ना कोई हमें बाउंडेड वैल्यू मिलेगा, लेकिन अगर z इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? ये इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 1/z, ये इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इंटायर जेड प्लेन इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है एक्सेप्ट दिस z इज इक्वल टू 0। ठीक है, और जो हमारे पास प्रीवियस हमने एग्जांपल सॉल्व किया, ये इसका जो आरओसी है वो इंटायर जेड प्लेन है। ठीक है, क्योंकि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ जेड वेरिएबल, इसमें जेड कोई मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, तो आप कोई भी वैल्यू पुट करें तो उसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। अच्छा, जो हमारे पास दूसरा सवाल था, तीसरा सॉरी, कि x ऑफ n इज इक्वल टू डेल्टा n प्लस 1। तो अब अगर हम बाय डेफिनेशन x ऑफ z फाइंड करें तो वो क्या होता है? फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x ऑफ n z पावर माइनस n। अब x ऑफ n हमें गिवन है, तो हम n फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डेल्टा n प्लस 1 z पावर माइनस n। अब देखिए यहाँ पर हमें डेल्टा क्या अब हमें यहाँ पर 0 लाना है, क्योंकि हमें पता है ये एग्जिस्ट ही सिर्फ वहाँ पर करता है। तो n इक्वल टू माइनस 1 पुट करें तो हमें क्या मिल जाएगा? डेल्टा ऑफ 0 z टू द पावर माइनस इंटू माइनस प्लस, तो इसका वैल्यू क्या हो गया? z। सही है, तो अब इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या हो जाएगा? इंटायर जेड प्लेन एक्सेप्ट क्या? z इज इक्वल टू इन्फिनिटी। हम इन्फिनिटी नहीं पुट कर सकते, बाकी सब वैल्यूज के लिए ये एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो अब हम डेफिनेशन को थोड़ा पढ़ते हैं, हो सकता है मेक सेंस करे कि इफ एक्स ऑफ एन इज अ फाइनाइट ड्यूरेशन। अब देखें हमारे पास जो स्टेप सिग्नल है वो फाइनाइट ड्यूरेशन का होता है, देन आरओसी इज एंटायर जेड प्लेन एक्सेप्ट पॉसिबिलिटी z इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि z हम 0 नहीं पुट कर सकते, कहीं पर z इन्फिनिटी नहीं पुट कर सकते, कहीं पर हम दोनों ये पुट नहीं कर सकते। ठीक है, हमने ये तीनों कंडीशंस विथ रेस्पेक्ट टू दिस, इसका हमारे पास जो डेल्टा एन का हमारे पास रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है वो इंटायर जेड प्लेन है। इसका हमारे पास जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है इंटायर जेड प्लेन है एक्सेप्ट जेड इज इक्वल टू इन्फिनिटी, राइट? और इसका हमारे पास जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है वो क्या है? सॉरी, इसमें हम 0 नहीं पुट कर सकते, इसमें हम इन्फिनिटी नहीं पुट कर सकते। तो ये देखिए रीजन ऑफ कन्वर्जेंस हर सिग्नल का डिफरेंट तरीके से हो रहा है। सर इसका मतलब हम जो है ना इन्फिनिटी ना आए, मतलब किसी भी हाँ, हमारा सिग्नल में। आउटपुट, हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारे पास जो ये फंक्शन है जो हमने एक एक्स ऑफ जेड कैलकुलेट किया है, इसको इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए। सही है, वो वैल्यूज हमें एक्सक्लूड करने हैं जो इन्फिनिटी आएंगे। ठीक है, हमें सिर्फ वो वैल्यूज ही रखने हैं जो बाउंडेड हो, 0 हो सकते हैं और कोई कोई भी वैल्यू हो सकता है, लेकिन इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए आउटपुट। ठीक है। ओके सर, समझ गए सर, इजी है। अच्छा, अब ये हमारे पास एक सीक्वेंस है कि ये कह रहा है कि भाई हमारे पास कैलकुलेट करके दें एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू बी पावर एब्सोल्यूट ऑफ एन। अब अगर आपको याद हो कि एब्सोल्यूट ऑफ एन किसके बराबर होता है, ये बी पावर एन होगा व्हेन एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, राइट? और बी पावर माइनस होगा व्हेन एन इज लेस देन और इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, ऐसा ही होगा। तो हम इसको क्या इस तरह नहीं लिख सकते बी पावर एन को, कि बी पावर एन यू ऑफ एन माइनस बी पावर एन यू ऑफ माइनस एन माइनस 1।
ठीक है, इस तरह लिख सकते हैं इसको। सॉरी ये माइनस होगा ना यहाँ से, है ना, ये यहाँ पर माइनस होगा। ठीक है बाबा, इसको इस तरह हम लिख सकते हैं। ये हमारे पास एब्सोल्यूट जो हमारे पास सिग्नल है, इसको इस तरह हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, अब इसको अगर हम कैलकुलेट करें, इसका x ऑफ z किसके बराबर होगा, तो हम क्या करेंगे, वही डेफिनेशन पहले तो हम सॉरी ये मैंने क्या कर दिया, समेशन n फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x ऑफ n z पावर माइनस n, x ऑफ n का वैल्यू रिप्लेस करें तो क्या हो जाएगा, b पावर n u ऑफ n माइनस b पावर माइनस n u ऑफ माइनस n माइनस वन। ठीक है, z पावर माइनस n। ठीक है, ये हमारे पास इनपुट सिग्नल है। इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो n फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, अगर मैं ये z पावर n समेशन अलग अलग करूं तो ये हो जाएगा b पावर n u ऑफ n, और माइनस समेशन n फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन b पावर माइनस n z पावर माइनस n। ठीक है, इसी तरह होगा, ये होगा फ्रॉम जीरो टू अब इन्फिनिटी। ठीक है, अब इसको आपने सॉल्व किया हुआ है सर मेरे इसमें u ऑफ माइनस से u माइनस वन, तो वो भी तो आएगा ना सर सेकंड क्या पार्ट में। आएगा, सर b पावर माइनस n x ऑफ माइनस n माइनस वन। ये वाला आप कह रहे हैं। यस सर। देखें अब मैंने यहाँ पर देखें इसको डायरेक्टली, अब हमें पता है कि u ऑफ माइनस एन माइनस वन क्या करता है, ये माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन तक हमारे पास समेशन को चेंज कर रहा है, तो मैंने इसका डायरेक्टली इफेक्ट यहाँ पर लिख दिया, और अच्छा मैंने अच्छा, इसको सही है u सर। ऑफ एन को सर भी मैंने समझ खत्म गया। कर दिया। सही है सर, एक पॉजिटिव डायरेक्शन के लिए, एक नेगेटिव डायरेक्शन के लिए सर। हाँ आपने एग्जैक्टली। मीन्स अच्छा, समेशन, समेशन में आपने बस कर दिया इसमें माइनस इन्फिनिटी बिल्कुल टू माइनस वन। एग्जैक्टली। अब देखें इसका तो हमें पता है कि इसका क्या होगा हमारे पास, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, वन अपॉन वन माइनस बी जेड इनवर्स, राइट, यही होगा इसका, ये जो हमारे पास पहली सीक्वेंस है। अब दूसरी को हम कैलकुलेट करके देखते हैं, ये भी हमने कैलकुलेट की हुई है, अगर आप यहां से देखें तो आपको क्या क्या लगता है इसका क्या होगा आउटपुट, इसको हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल में एक पेज मैंने खाली छोड़ा होगा, नहीं छोड़ा, चले मैं सिर्फ इस सीक्वेंस को, ये वाली जो सीक्वेंस है इसको मैं कैलकुलेट करके बताता हूँ आपको। ठीक है, तो हमारे पास देखें, एक हमारे पास यहाँ पर मैं इसको दोबारा लिखता हूँ, n फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी b पावर n u ऑफ n z पावर माइनस n है। ठीक ठीक है, इसका अगर हमने z ट्रांसफॉर्म फाइंड किया हो तो वो किसके बराबर होता है, वन अपॉन वन माइनस बी जेड इनवर्स, और इसकी रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगी, मस्ट बी लेस देन, सॉरी ग्रेटर देन बी, ग्रेटर देन सर। ग्रेटर देन बी। ठीक है, एक तो हमारे पास क्लियर है। बाकी दूसरी जो सीक्वेंस है कि माइनस समेशन n फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन बी पावर माइनस एन जेड पावर माइनस एन, इसको भी हमें कंप्यूट करना है। तो इसको मैं थोड़ा इस तरह लिख सकता हूँ, अगर आप देखें, समेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन बी इनवर्स या बी जेड होल पावर माइनस एन, इस तरह लिख सकता हूँ। अच्छा, अब देखें, अब अगर मैं एक दूसरा वेरिएबल ले आता हूँ m, जो कि बराबर हो माइनस एन के, तो ये हमारे पास समेशन किस तरफ हो जाएगी, m फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी, सही है, बी जेड होल पावर प्लस एम, राइट, ठीक है था। अब देखिए मैंने सिर्फ m इज इक्वल टू माइनस एन किया है, तो यहाँ से हमारे पास m क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू माइनस एन, तो यहाँ पर n का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी है, माइनस इन्फिनिटी इंटू माइनस प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, समेशन को मैंने रीअरेंज कर दिया है, यहाँ पर n इक्वल टू माइनस वन है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस वन, तो m फ्रॉम वन। अब यहाँ पर माइनस एन लिखा हुआ है, तो m का वैल्यू क्या है, माइनस एन, तो मैंने यहाँ पर डायरेक्टली ये m रख दिया। ठीक है, तो समेशन हमारे पास रीअरेंज हो गई, और हमें पता है कि ये किसके बराबर होना चाहिए, बी जेड अपॉन वन माइनस बी जेड, राइट, सही है। तो हमारे पास इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या हो जाएगा, बी जेड मस्ट बी लेस देन वन, ठीक है,
तो z मस्ट भी क्या होना चाहिए, z क्या होना चाहिए, सर z नॉट हमारा होना इक्वल चाहिए टू 0। लेस देन 1/b, राइट। देखिए इसको हम इस तरह लिख सकते हैं ना भाई कि z टाइम्स b लेस देन 1। अब ये हमारे पास मल्टीप्लाई में उस तरफ जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, तो यही आउटपुट मिलेगा, ठीक है। तो हमारे पास रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या मिल गए, दो मिल गए यहां से टोटल ओवरऑल। एक हमारे पास कहता है कि z मस्ट बी ग्रेटर देन b, और दूसरा कहता है कि z मस्ट बी लेस देन 1/b, ठीक है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा ना इसको प्लाट करके देखते हैं कि इसका प्लाट के बाद हमें थोड़ा सा आइडिया होगा कि मैंने आपको बताया क्यों है। अब देखें जब b हमारा ग्रेटर देन 1 है तो से फॉर एग्जांपल हमारे पास b जो है इसका वैल्यू है 2, सही है। तो पहला सिग्नल हमारे पास क्या कहेगा कि रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या होनी चाहिए, 2 से ग्रेटर होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरा सिग्नल क्या कहेगा, 1/b मतलब 0.5 से इसकी रीजन ऑफ कन्वर्जेंस लेस होनी चाहिए। तो देखिए इनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, कोई भी नहीं है, सही है। तो हमारे पास ये सीक्वेंस कभी भी कन्वर्ज नहीं करेगी, हमेशा डाइवर्ज करेगी। ये बात क्लियर है। देखिए हम बी ऐसे अगर हम ग्रेटर देन 1 लिखा हुआ है तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कि भाई फॉर एग्जाम्पल इसका बी का कोई वैल्यू अज्यूम कर लेते हैं। मैंने कहा कि भाई फॉर एग्जाम्पल बी हम 2 कर देते हैं, 2 इज ग्रेटर देन 1। तो एक हमारे पास रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या थी कि z मस्ट बी ग्रेटर देन b। तो b हमारे पास अब 2 है तो z मस्ट बी ग्रेटर देन 2। तो देखें ये हमारे पास पहली रीजन क्या कह रही है, z मस्ट बी ग्रेटर देन 2। अब दूसरी रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या कह रही थी कि z मस्ट बी लेस देन 1/b, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें 1 डिवाइड बाय 2 क्या होता है 0.5। तो दूसरी हमारे पास रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या कह रही है कि इसका वैल्यू ये होना चाहिए। तो अब हमारे पास कोई भी कॉमन रीजन नहीं बन रही, सही है। एक कह रही है कि इसकी रीजन ऑफ कन्वर्जेंस इस तरफ होनी चाहिए, अंदर की तरफ 0.5 के, और दूसरी कह रही है कि इसकी रीजन ऑफ कन्वर्जेंस बाहर होनी चाहिए। तो कोई इंटरसेक्शन पॉइंट है, कोई भी इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है, तो ये हमारे पास सीक्वेंस कभी भी कन्वर्ज नहीं होगी। अच्छा, अब दूसरी बात कि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल जो रेंज है वो 0 और 1 के दरमियान है, फॉर एग्जांपल 0.5 है, ठीक है। हम कहते हैं कि भाई z इज इक्वल टू 0.5 है, सॉरी b इज इक्वल टू 0.5। तो एक हमारे पास सीक्वेंस क्या कहेगी, z मस्ट बी ग्रेटर देन 0.5, सही है। तो एक हमारे पास कहेगी कि z मस्ट बी 0.5 के आउटसाइड, ठीक है, ये आउटसाइड। और दूसरी हमारे पास जो सीक्वेंस है वो क्या कहेगी, z मस्ट बी लेस देन 1/0.5 विच इज इक्वल टू 2। तो ये अगर फॉर एग्जाम्पल कोई 2 पॉइंट है तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या होनी चाहिए, अंदर की तरफ होनी चाहिए, सही है। तो देखिए कॉमन रीजन क्या बन रही है 0.5 और 2 के दरमियान। तो ओवरऑल जो हमारे पास रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होगी वो क्या होगी, ओवरऑल रीजन ऑफ कन्वर्जेंस हमारी 0.5 और 2 के दरमियान एक क्या बनेगी, एक रिंग बनेगी, सही है। तो हम इसको अब इंटरप्रेट किस तरह करेंगे कि अगर हमारे पास b ग्रेटर देन 1 है तो नो कन्वर्जेंस है, तो कोई कन्वर्जेंस नहीं। लेकिन अगर b का वैल्यू 0 और 1 के दरमियान है तो हमारे पास जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है वो क्या है, 1 डिवाइड बाय b इज लेस देन z, z इज लेस देन b, ठीक है। तो यह मैंने उल्टा लिखा है, इसको इस तरह नहीं होगा, ये b इज लेस देन z, z इज लेस देन 1 डिवाइड बाई b होगा। क्योंकि देखिए 1 डिवाइड बाई 0.5 इज 2, ठीक है। तो 0.2 से लेस हो और 0.5 से ग्रेटर हो तो ये हमारे पास इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है ओवरऑल। तो टाइम हो टाइम थी हो रहा, जी सर नेक्स्ट क्लास। हलो ठीक है, बस वही पॉइंट इतना आंसर रखते कंटिन्यू करना। ओके सर, थैंक यू।